Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you all are healthy, fit and safe in your homes. And I'm also sure that you are watching the videos. Children, you must be knowing that we are doing unit 3 of your maths textbook, which is subtraction. And we have already completed a few of the exercises. And in my previous video, I have started subtraction stories. That is statements, questions that I had started, and few questions we have already completed, already done. So in today's video also we will continue the same, that is subtraction stories. We will continue with subtraction stories. Children, I have told you that in addition story or subtraction story, or whether it is multiplication or division stories, writing a statement is very important. Though it is not mentioned in your book, but you should learn how to write statements. Simple short statements at your grade is acceptable. आप छोटे छोटे स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, इजी सेंटेंस वाले सेंटेंस आप स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, बिकॉज इट विल गिव यू प्रैक्टिस फॉर राइटिंग even better statements when you go to higher class. So you must practice writing statements, okay? And I have also told you that while doing statement sums, you have to not only give the solution of the question, but also you have to write the answer. Because in a statement question, in addition or subtraction stories, you are supposed to give the answer. So after solving the question, you will write the answer. Okay? तो हमने कल किया था, कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने. So let's start with question number 5, because till question number 4 we have done in the previous video. First, second, third, fourth we have already done in the previous video. Those who have not seen the video, please watch that. And we will start fifth one, question number 5. Question number 5 we will start, okay? A fruit seller had 7, 8, 9 apples. Okay? A fruit seller has 7, 8, 9 apples. Out of them 38 were found rotten. How many were good ones? How many were Did you understand the question? क्या इसमें करना आपको समझ में आ रहा है? Children, in this question, there is a fruit seller who has 7, 8, 9. That is 789 apples, and out of those 789 apples, 38 apples were found rotten. Rotten मतलब सड़ा हुआ. So out of 789 apples, 38 apples were rotten. एक फ्रूट सेलर है, उसने कितने एप्पल्स हैं उसके पास? 789 एप्पल्स हैं. उसमें से 38 एप्पल्स जो थे वो सड़े हुए निकले, ठीक है, रॉटन निकले. तो अब ये बताना है, क्वेश्चन इज
हाउ मेनी वर गुड वंस, तो अच्छे एप्पल्स कितने थे? जब 38 सड़े हुए थे तो अच्छे एप्पल्स कितने थे? तो आपको पहले क्या देखना है कि टोटल एप्पल्स कितने हैं, उसमें से सड़े हुए एप्पल्स को निकाल दो। वैसे भी तो हम ऐसे ही करते हैं ना, हम घर पे अगर फ्रूट लाते हैं और अगर सड़ा हुआ निकलता है तो उसको निकाल देते हैं। तो ऐसे ही समझ लो कि आप घर में फ्रूट लाए हो और जो उसमें सड़े हुए थे उसको आपने निकाल दिया। तो अच्छे जो एप्पल्स थे, जो प्रॉपर फ्रेश एप्पल्स थे, वो कितने हैं? ठीक है, तो लेट्स डू दिस। हम पहले स्टेटमेंट से शुरू करेंगे। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? एप्पल्स, सिंपल लिख दो, एप्पल्स कितने हैं? 7, 8, 9। रॉटन एप्पल्स, Here you can also write total apple, यहाँ पर आप टोटल एप्पल भी लिख सकते हो। ठीक है, टोटल एप्पल्स 789, रॉटन एप्पल्स 38, सड़े हुए एप्पल्स कितने हैं? 38। तो गुड एप्पल्स कितने हैं? गुड एप्पल्स कितने होंगे? 789 में से हम 38 माइनस कर देंगे। 789 माइनस 38, ठीक है। 789 में से हम 38 को माइनस कर देंगे। गॉट इट? तो हमारा कितना आंसर आएगा, हम इसे माइनस करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे जगह ज्यादा नहीं है, या मैं यहाँ माइनस करके दिखाती हूँ। 789 माइनस 38, इसको करते हैं। चलिए, 9 में से 8 निकाल दीजिए। 9 माइनस 8, 9 में से हम 8 जब रिमूव करेंगे, 8 ले लेंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा? 1। और 8 में से 3 हटा दीजिए। समझ लीजिए कि 8 अच्छे एप्पल्स हैं और 8 एप्पल्स है, उसमें से 3 वाले सड़े हैं, हमको 3 को हटा दिया, निकाल दिया। तो कितने बचेंगे? 4, 5, 6, 7, 8, 5। यहाँ कुछ नहीं है तो हम ऐसा इसको उतार लेंगे। मतलब कितना अच्छे एप्पल्स कितने हैं? 7, 5, 1। तो आपको आंसर यहाँ लिखना होगा। आंसर इज 751 गुड एप्पल्स। 751 गुड एप्पल्स, अच्छे वाले एप्पल्स कितने हैं? 751। ओके, 751 गुड एप्पल्स हैं। नाउ लेट्स डू द, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। फ्रूट सेलर्स के पास टोटल 789 एप्पल्स थे, उसमें से 38 एप्पल्स जो थे वो रॉटन एप्पल्स थे। उसके बाद तो हमें बताने हैं कि अच्छे वाले एप्पल्स कितने बचे, जो बिना सड़े हुए एप्पल्स थे। तो टोटल एप्पल में से सड़े हुए एप्पल आप निकाल दीजिए, रॉटन एप्पल्स को निकाल दीजिए, तो जो बचेगा वो गुड एप्पल्स हैं। गॉट इट? अब इसको हम इरेज कर देते हैं। Now children, we will do the next question of your book. Children, next question is question number 6. Rajesh bought 5, 3, 8 newspapers. Okay, Rajesh bought 538 newspapers. Rajesh ने 538 newspapers खरीदे। ठीक है, कितने खरीदे? 538, 538। 526 were sold out. 5 to 6 were sold
आउट। कितने उसमें से बिक गए? 526 न्यूज़पेपर्स बिक गए। उसने खरीदे कितने थे? 538। उसमें से 526 न्यूज़पेपर्स उसके बिके। राजेश जो है वो न्यूज़पेपर सेलर था, न्यूज़पेपर बेचने वाला था, और उसके पास उसने इतने सारे जो थे न्यूज़पेपर्स खरीदे, और उसमें से फिर इतने उसके बिक गए। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है? हाउ मेनी वर लेफ्ट, कितने बच गए। ठीक, हाउ मेनी वर कितने न्यूज़पेपर्स बच गए। मतलब जो बिक गए वो तो बिक गए, पर उसके पास फिर कुछ बच गए ना, तो कितने न्यूज़पेपर्स बच गए। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्यूशन। टोटल न्यूज़पेपर्स, टोटल न्यूज़पेपर्स कितने हैं? 538। अब कितने बिक गए? न्यूज़पेपर्स सोल्ड, न्यूज़पेपर्स सोल्ड। कितने न्यूज़पेपर्स हैं जो बिक गए? ठीक है, कितने न्यूज़पेपर्स उसमें से बिक गए? तो कितने बिक गए? 526, है ना। तो हमें क्वेश्चन हमारा क्या है? हाउ मेनी वर लेफ्ट। तो लिखोगे न्यूज पेपर लेफ्ट, कितना बचा? तो कितना बचा? हम करेंगे 538 में से 526 माइनस 538 में से 526 को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा? 8 में से 6 जाएगा तो कितना होगा? 8 माइनस 6 2, 3 माइनस 2, 3 में से 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 1, और 5 में से 5 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 0, नथिंग। तो कितने न्यूज़पेपर्स बच गए उसके पास बिकने के बाद? उसके पास बचे 12 न्यूज़पेपर्स। तो लिखोगे आंसर 12 न्यूज़पेपर्स लेफ्ट। कितने न्यूज़पेपर्स बचे? 12। ओके, राजेश के पास 12 न्यूज़पेपर्स बच गए। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। अगला करें। ये आपको समझ में आ गया ना? लेट्स डू द नेक्स्ट वन। Next question. Children, next question is, there are 258 students in a school. There are 258 students in a school. मतलब एक स्कूल में 258 students हैं। 37 students were absent on Monday. और मंडे को 37 स्टूडेंट्स जो थे वो एब्सेंट थे, मतलब वो स्कूल नहीं गए थे। हाउ मेनी वर प्रेजेंट, तो कितने प्रेजेंट थे? जैसे एक स्कूल में कुछ बच्चे हैं और मंडे के दिन कुछ बच्चे एब्सेंट हैं स्कूल में, तो आपको बताना कि प्रेजेंट कितने हैं, कितने बच्चे स्कूल आए थे। ठीक है, ये आपको बताना है। तो पहले हम क्वेश्चंस को लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है? There are 258 students in a school. There are 258
students in a school. 37 students were absent on Monday. Students were absent on Monday. How many were present? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? जैसे नॉर्मली आपकी क्लास में भी ऐसा होता होगा कि किसी दिन जैसे क्लास की 40 अगर स्ट्रेंथ है या 50 स्ट्रेंथ है, क्लास में टोटल 40 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि सारे बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, क्लास में कुछ बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं किसी भी रीजन से, कहीं जाना है, फीवर है या कफ कोल्ड है या कुछ भी रीजन से बच्चे स्कूल नहीं आते हैं। तो क्लास की स्ट्रेंथ कम होती है ना, टीचर अटेंडेंस लेती है, पूछती है कितने प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं। तो सेम वही है स्कूल का है कि स्कूल में टोटल 258 बच्चे हैं और मंडे को 37 बच्चे स्कूल नहीं गए, वो एब्सेंट हो गए। तो कितने बच्चे प्रेजेंट है ये हमें बताना है। ठीक है, तो लेट्स डू सोल्यूशन। क्या लिखेंगे? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 258। स्टूडेंट्स एब्सेंट, स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं? 37 स्टूडेंट्स एब्सेंट। ठीक है, हाउ मेनी वर प्रेजेंट? तो प्रेजेंट कितने हुए? तो हम क्या करेंगे, जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनमें से एब्सेंट स्टूडेंट्स को निकाल देते हैं, क्योंकि वो दिन स्कूल गए ही नहीं, तो उनको हम स्कूल से बाहर रखते हैं। तो माइनस करते हैं 8 माइनस 7। 8 माइनस 7 कितना होता है? 1। 5 माइनस 3, 5 में से 3 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 5 माइनस 3 2। और यहाँ 2 में से कुछ नहीं माइनस करना है तो हम ऐसे ही उतार लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या आया? 221। कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है? प्रेजेंट कितने हैं? 221 प्रेजेंट या 221 स्टूडेंट्स प्रेजेंट। ठीक है, 221 स्टूडेंट्स प्रेजेंट। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया। एडिशन स्टोरीज में इतने ही क्वेश्चंस थे आपके, 1 से 7 क्वेश्चन थे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बस इतना कर लिया तो हो गया। यू शुड प्रैक्टिस ऑल्सो। और भी आप डिजिट्स चेंज कर करके, जैसे यहाँ 37 लिखा है, 258 लिखा है, तो डिजिट्स को चेंज कर करके, नंबर्स को चेंज कर करके आप और भी ऐसे ही सम्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो ये नंबर्स लिखे हैं उसी नंबर से आप करो। यू कैन चेंज द नंबर एंड यू कैन प्रैक्टिस सच सब्ट्रैक्शन स्टोरीज। चिल्ड्रन प्रैक्टिस statement writing and also how to understand the question. You must comprehend the question, you must understand the question कि क्वेश्चन में किस में से किसको माइनस करना है। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, इसलिए इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी अच्छे से आ जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं, सम एंड डिफरेंस। ये एक क्रॉसवर्ड पजल जैसा है, मैं आपको समझा देती हूँ ये कैसे करना है।
Children, this is given on page number 59. Page number 59 of your maths textbook. Sum and difference. Sum होता है ऐड करना और डिफरेंस होता है माइनस करना. ठीक है. सम का मतलब है ऐड करना और डिफरेंस का मतलब है सब्ट्रैक्ट करना. ठीक है. अभी इसमें करना क्या होगा, आपके पास एक क्रॉसवर्ड पजल बना हुआ है. ठीक है. आप अपनी बुक में जब देखेंगे समथिंग लाइक दिस. ठीक है. और इसमें ऐसे लाइंस हैं. फिर यहां से भी है. ठीक है. इस तरह का एक चेक जैसा सेंटर में बना हुआ है और उसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हैं, तो मैं वो भी लिख देती हूँ आपके लिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then 11 12 13 14 15 16 17 and then 18 थोड़ा बड़ा कर देती हूँ 19 20. ओके. ये कुछ आप अपने बुक में देख सकते हैं. अगर आपको ये नंबर्स छोटे छोटे लग रहे हैं तो यू कैन लुक इनटू योर बुक. यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. अब इसमें करना क्या है? करना ये है कि आपके पास कुछ एडिशन वाले सम्स हैं उस पेज पर और कुछ सब्ट्रैक्शन वाले सम्स हैं. एडिशन के कुछ सम्स हैं, सब्ट्रैक्शन के कुछ सम्स हैं. जो एडिशन के सम्स हैं मतलब जो जिसमें आपको प्लस करना है वो आप ऐसे लिखोगे अक्रॉस. उसका जो आंसर आएगा जब आप ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा उसको आप ऐसे लिखोगे. जो सब्ट्रैक्शन वाले सम्स है जिसमें कि माइनस करना है उसमें जो आंसर आएगा उसे आप ऐसे ऊपर से नीचे डाउन में लिखोगे. ठीक. जो एडिशन करने के बाद जो प्लस करने के बाद जो आपके आंसर्स आएंगे उनको आप ऐसे लिखोगे अक्रॉस. ठीक है. एज पर द नंबर्स गिवन. जो डिफरेंस के बाद जो आंसर आएगा, जो आपको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो आंसर को आप डाउनवर्ड्स लिखोगे, मतलब ऊपर से नीचे एज पर द सीक्वेंस. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है. इस एक्सरसाइज में प्लस भी है और माइनस भी है. ठीक है. पहला पॉइंट ये है कि इसमें प्लस भी है और माइनस भी है. पहले आप करेंगे प्लस वाले सम्स. प्लस वाले सम्स जब आप करते जाएंगे तो उनके जो आंसर्स आएंगे वो आपको इस तरह से लिखना है. ठीक है. आपको लेफ्ट से राइट की तरफ लिखना है. फिर आप उसके बाद करेंगे सब्ट्रैक्ट, मतलब आप माइनस करेंगे. माइनस के सम्स अलग से दिए हुए हैं, उनको आप जब माइनस करेंगे तो जो आपके आंसर्स आएंगे उन आंसर्स को आप ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे जिस तरह से नंबर्स दिए हुए हैं. ठीक है. मैं आपको करके दिखा रही हूँ. कुछ कंप्लीट मैं आज नहीं करूंगी, आप खुद से ट्राई करना. आई विल गिव यू सम हिंट. मैं आपको
थोड़ा थोड़ा हिंट दे रही हूँ, आप प्रैक्टिस करना। हम इसको करेंगे सॉल्व, पर आप पहले समझ लो। जैसे आप देखोगे कि आपके बॉक्स में पहले से ही लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर यहाँ 3 लिखा है और यहाँ भी 3 लिखा है। ठीक है, आप बुक में देखिए रेड कलर से 5 4 5 और फिर ये 3 और 3। ठीक है, जो नंबर 1 है वहां पे 5 लिखा है, जहां 2 लिखा है वहां पे 4 है, जहां 3 लिखा है वहां 5 है। 5 4 5। 7 वाली जगह पे 3 है और 9 वाली जगह पर भी 3 है। पर ये क्यों लिखा है, ये कहां से आया, कैसे आया, इसे क्या करना है, आप अपनी बुक में देखिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ऐसे नंबर 1 लिखा हुआ है और वहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा है 3 1 1 प्लस 2 3 4, ऐसा लिखा है कोई क्वेश्चन, और उसको सॉल्व भी किया हुआ है ना, उसको सॉल्व भी किया। आंसर वहां लिखा हुआ है 5 4 5, 5 4 5 लिखा हुआ आंसर है ना। तो ये 5 4 5 आपको यहाँ पर दिख रहा है। 5 4 5 क्यों यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यहाँ लिखा है नंबर 1। तो जहां 1 है, जहां पे 1 लिखा है वहीं से आप इसको लिखोगे 5 4 5, क्योंकि ये नंबर 1 है और ये नंबर 1 क्वेश्चन है और आंसर ये आया है। और हमें ऐसे ऐसे लिखना है, लेफ्ट टू राइट, तो हम लिखेंगे 5 4 5। ये इतना समझ में आया कि क्यों ऐसे लिखा हुआ है ये। उसके नेक्स्ट में एक क्वेश्चन और लिखा है, और वहां पे क्या लिखा है, वहां पे नंबर लिखा हुआ है 4। आप देखेंगे 2 नहीं लिखा है, 4 लिखा है। अब उस 4 में क्या लिखा है, उस 4 में लिखा है 2 0 0 प्लस 2 1 4। लुक इन द बुक, ऐसा ही लिखा है ना। 1 के नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लिखा है, 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको ऐड करेंगे। ठीक है, इसको ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उसको जहां 4 लिखा है वहां से आप लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। गेटिंग माय पॉइंट? मैं करके दिखा रही हूँ। 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 1 1, 2 प्लस 2 इज 4। क्या आया, 4 1 4। आंसर क्या आया, 4 1 4। तो इसको हम कहा लिखेंगे, जहां ये 4 लिखा है वहां पर लिखेंगे 4 1 4। समझ में आया आपको? इतना समझ में आया क्यों हम ऐसे लिखेंगे? आप ऐसे ही देखेंगे कि 4 के जो बगल में, 4 के जो नेक्स्ट है उस उधर लिखा है 7। 4 के बाद नॉर्मली काउंटिंग में 5 आता है, लेकिन वहां लिखा है 7। मतलब जहां 7 नंबर है, 7 नंबर कहां पर है, 7 नंबर है यहाँ। ठीक है, तो जहां 7 नंबर लिखा है वहां से आपको स्टार्ट करना है, वहां से आपको लिखना शुरू करना है नंबर। देखिए मैं कौन, जैसे 7 नंबर में लिखा है यही लिखा है ना क्वेश्चन। अब आप क्या करेंगे, इसको आप इसको ऐड करेंगे। 3 प्लस 2 5, 6 प्लस 1 7, 2 प्लस 1 3। क्या आंसर आया, 3 7 5। क्या आया, 3 7 5। तो आपको क्या करना है, ये 3 7 5 को आपको जहां 7 लिखा है वहां पे लिखना है। 7 यहाँ पे लिखना है, तो आपको 3 पहले से लिखा हुआ, देखिए 3 पहले से लिखा हुआ, आपको सिर्फ 7 और 5 लिखना है। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी के जो सम्स हैं वो भी हमें इसी तरह से ही करना है। ठीक है, इसमें 7 के बाद 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, फिर 14 है, 17 है, 19 है, 18 है और 20 है। ये सारे एडिशन वाले सम्स हैं। तो आप ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा अकॉर्डिंगली जहां जहां जो नंबर्स लिखे हैं
वहां पर वो आंसर्स आप लिखते जाएंगे। जब ये पूरा हो जाएगा फिर सब्ट्रैक्शन वाला करेंगे, और सब्ट्रैक्शन वाले के आंसर्स हम कैसे लिखेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ। चिल्ड्रन ये एक्सरसाइज हम करेंगे बहुत अच्छे से, पर आज की वीडियो में नहीं करेंगे, हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज मैंने आपको ये समझा दिया, ये आपको पजल समझा दिया, ताकि जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको करें तो आपको समझने में परेशानी ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।